Hello, my dear friends. Myself, Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri, and my coaching classes is Qadri Coaching Classes. Through Qadri Coaching Classes and my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri, once again, Alimuddin Sheikh in front of you to discuss two different types of questions. My dear students, those questions are simply, we have read it. What is greenhouse effect? Our first question is, those questions are given by me, and our humble request to all of the students, please write the answer of given questions. What is greenhouse effect? What is ozone layer depletion? And how it can be depleted. Write the precaution and treatment of chronic disease. Write the precaution and treatment of chronic disease. And fourth question, write a short note on chronic disease and poor health. Write a short note on chronic disease and poor health. Next question, how can spread disease explain with the help of suitable diagram? How can spread of the disease with the help of suitable diagram? For just like with the water, air, shaking the hands, so any other points. And next one, and our last question is, what is the difference between healthy person and disease person? Disease free person, sorry. Our last question, write the differences between healthy person and disease free person. So my dear friends and my dear students and my dear loving children, today I have given the answer of these questions. So I have discussed the first point, what is give the region or what is the region of ozone layer depletion. My dear friends, this chapter, this points is also belongs in your own lesson in the class 9th, natural resources. In which lesson? Natural resources. So my dear friend, within this case, we have write the lesson, the two lessons are here. One is the natural resources and other is the why do we fall ill. So my loving children, natural resources we have already discussed. How can it be ozone layer deplete? My dear friends, ozone layer I have already made this video and uploaded our YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका हूं, और आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी अब तक इन क्वेश्चंस को न रीड किया हो, न देखा हो, न डिस्कस किया हो, उसको पूरी तरह से रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। और अब मैं इसमें जो क्वेश्चन ऐड करूंगा वो जो है टैग में ऐड ना करके उसको डायरेक्टली हम ऐड करेंगे जो है डिस्क्रिप्शन में। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो and write the answer of given question with the help of given YouTube videos. So first of all, I have explained how ozone layer is depleted. First of all, we have to know what is the work of ozone layer. What is the work of ozone layer? My dear and loving children, within this case, I have already been told, the sun is the major source of energy. Sun is the major source of energy, and it creates to the different so many types of rays. So many types of rays is scattered
so many types of rays. Within these rays, ultraviolet rays are very harmful for us, and ozone layer is very, very effective, though you are simply absorb the ultraviolet rays. If the ultraviolet rays have not been reached in the earth, not be reached on the earth, it means we have saved to the several kinds of diseases. We have saved to the several kinds of diseases. My loving children, यदि अल्ट्रावायलेट किरणें हम तक नहीं पहुंच पाएंगी तो हम कई रोगों से, एक रोग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कई रोगों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान होगी। और आज मैंने बताया कि मेजर कॉज ऑफ एजेंट वी आर मेजर कॉज ऑफ अ पोल्यूटिंग एजेंट। वी आर मेजर कॉज ऑफ अ पोल्यूटिंग एजेंट। अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन हमारे द्वारा हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा हो रहा है। और ये ह्यूमन बीइंग्स इतना हाईली पोल्यूशन का जो है क्रिएट कर रहे हैं कि ओजोन लेयर तक डिप्लीट हो जा रही है। सपोज दैट मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर यहां पर एक लेयर बनी हुई है। इसी लेयर को का नाम हमने दिया है ओजोन लेयर। क्या नाम दिया? ओजोन लेयर। यही जो सन से रेजेस आ रही हैं, इन सन से आने वाली रेजेस को ये ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और यदि ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर ले रही है तो आप देखिएगा हम कितनी आसानी से अर्थ पर अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा ले रहे हैं। और हमने क्या किया? इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या किया? इसके जस्ट अपोजिट हमने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया इन ए रेफ्रिजरेशन, इन ए AC कूलिंग एजेंट। ऐसी कंडीशन में जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो आपने देखा यदि हम इसका यूज कर रहे हैं, इससे निकलने वाली जो टॉक्सिक गैसेस है, टॉक्सिक गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एथिलीन, एसिटिलीन, मीन्स if the organic compound had completely combused to form of a different types of toxic gases, or organic compound are combused to form of carbon dioxide and water, this was a simple reaction. But in the case of here, मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों के कंबस्टन से, जैसे हमने किया कि एथिलीन से हमने बना लिया क्या? पॉलीमराइज करके हमने बनाया पॉलीएथिलीन। एथिलीन को जब हमने पॉलीमराइज किया ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यदि हमने इसको पॉलीमराइज किया तो बन गया पॉलीएथिलीन। अगर ये पॉलीएथिलीन बना तो पॉलीएथिलीन से इसका पॉलीएथिलीन मींस पॉलीथीन, पॉलीथीन। ये पॉलीथीन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया, प्रतिबंधित किया, इसको रोका, फिर भी आज हम पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा अगर सिंपल वे में अगर इसके रिएक्शन को देखा जाए तो आप देखिएगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल टेकन ट्वाइस हो गया। ये हो गया जो है सॉरी ये हो गया N मोल में एथिलीन हो गया। और यहां पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बना दिया C। यहां पर देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड टेकन N, ये बन गया पॉलीएथिलीन। यहां पर जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये रिएक्शन बन गया पॉलीएथिलीन का। तो एथिलीन ये जो है एकलक है, मोनोमर है, और पॉलीथीन बाहुलक है। किसका बाहुलक है? एकलकों का बाहुलक है। एकलकों का ये बाहुलक है, अर्थात कई एकलक अगर मिल गए, कई मोनोमर मिल गए तो पॉलीमर बना लेंगे। माय डियर एंड लविंग चिल्ड्रन, यदि ऐसे ही पॉलीमर बनते रहे और ऐसे ही इनका कंबस्शन होता रहा, ऐसे ही टॉक्सिक गैसेस का फॉर्मेशन होता रहा और ऐसे ही टॉक्सिक गैसेस बनती रही, तो ये मैंने बताया कि इस तरह से ओजोन लेयर पर जाकर के जब हाई जो है अर्थ से ऊपर उठती हैं तो यहां पर पहुंच करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं। और जब ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करेंगी तो ओजोन लेयर धीरे धीरे और वहां से अपक्षरित हो जाएगी और जो होल होगा उसी होल से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंच जाएंगी। अगर यहां पर ये होल कर दिया हमने, अब आप फिगर में देखिए कि ये होल हो गया, तो अल्ट्रावायलेट रेजेस
जहां तक ओजोन लेयर है वहां तक तो नहीं, लेकिन बीच से अल्ट्रावायलेट रेजेस पृथ्वी तक पहुंच आ रही हैं, अर्थ तक आ गई अल्ट्रावायलेट रेजेस। अब यहां पर चूंकि अर्थ में मूवमेंट होता है, गतियां हैं, इस तरह से इसके अराउंड में जितने भी पर्सन्स आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे, जितने भी मैमल्स आएंगे, जितने भी जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, सब के सब जो है इससे इफेक्टेड होते चले जाएंगे। और अल्ट्रावायलेट रेज ये हमारे जर्म प्लाज्मा में भी चेंजिंग कर देती है। इसलिए आपने देखा कि अगर ये हमारे जर्म प्लाज्मा में चेंजिंग कर दे रही है तो निश्चित ही आने वाली जनरेशन में वो कोई न कोई चेंजिंग आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो मैंने ये बताया आपको कि इस तरह से हम ओजोन लेयर्स को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर दिया कि सबसे मेजर पोल्यूटिंग एजेंट वी आर अ मेजर पोल्यूटिंग एजेंट। हम सबसे मेजर पोल्यूटिंग एजेंट हैं, चाहे वो हम हाउस होल्ड्स के थ्रू पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, अथवा हम लोग व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इस तरह से उनसे जो निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस हैं, उसमें हम डीजल का यूज कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। इनके कंप्लीट कंबस्शन से जो हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, यही टॉक्सिक गैसेस ये धीरे 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 ऊपर पहुंच करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं। और जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इन सब का फिगर माय लविंग चिल्ड्रन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। इस तरह से अगर इनका एक बैड इफेक्ट पड़ता है, इस तरह से यदि इनका एक बैड इफेक्ट पड़ता है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल ओवर वर्ल्ड ने निश्चय किया कि अब हम पोल्यूटिंग एजेंट को कम करेंगे। इससे आपने देखा कि मैंने आपको इसके पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये मैक्सिमम अमाउंट में ओजोन लेयर जो अपक्षरित हो गई थी, धीरे 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 इसका फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। यदि इसी तरह से हम 20 से 25 वर्षों तक लगातार 20 से 25 वर्षों तक लगातार ओजोन लेयर को अगर हम जो है मेंटेन करना चाहें, तो हम 20 से 25 वर्षों लगातार इसी तरह से हमको पॉल्यूशन को रोकना होगा। यदि हमने अपने पॉल्यूशन को इसी तरह से रोक लिया, पॉल्यूशन रुक गया, तो एक समय वो आ जाएगा जबकि ओजोन लेयर पूरी तरह से क्लाइमेट में छा जाएगी, अर्थात पूरी तरह से अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी। इस तरह से आपने देखा कि ये है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका फिगर भी देख लीजिए, मैं दे रहा हूं। और इसके फिगर के साथ साथ मैं ये बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं, होल क्या है। होल मीन्स जहां से ओजोन लेयर का डिप्लीट हो जाना, और डिप्लीट वहीं से होगी जहां पर टॉक्सिक गैसेस ज्यादा अमाउंट में पहुंचेंगे। अगर टॉक्सिक गैसेस ज्यादा अमाउंट में पहुंच रही है तो वहां से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वहां की ओजोन इनसे रिएक्ट, ओजोन वेरी सिंपल गैस है। सपोज दैट हियर when oxygen react with the simple mole of oxygen is converted to O3, ozone. O3 is the ozone. O2 plus O is equal to O3. Arise like O3 is equal to O2 plus O. ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में बदल जाता है। यह ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करके ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेता है। सिंपल रिएक्शन मैंने दिया आपको, ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन। इसी रिएक्शन के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटीज, सारी क्रियाएं इसी रिएक्शन के परिणाम स्वरूप चल रही हैं। इस तरह से हम ओजोन लेयर को अपने को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। माय लविंग चिल्ड्रन, क्रॉनिक डिजीज and poor health, and chronic disease, those who are already be found in whole lifetime of period, ऐसा रोग जो हमारे पूरे जीवन काल तक पाया जाता हो। A person those who are suffering from in those kinds of diseases, those who are simply occurring in their whole lifetime of period is called chronic disease. Is called chronic disease. For just like HIV, cancer, hepatitis, liver cirrhosis, and elephantiasis.
शुगर, इस तरह की जो डिजीजेज हैं ये क्रॉनिक हैं। अब क्रॉनिक डिजीज अगर हो जाती है तो हमको इसमें प्रिकॉशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए हो जाती हैं। और ऐसी डिजीजेज में जो लाइफ टाइम तक हमारे बॉडी को जो है हार्मफुल इफेक्ट शो करती रहती हैं, हमारे शरीर में एक बुरा प्रभाव प्रदर्शित करती रहती है, बुरा प्रभाव दिखाती रहती है, उनसे हम अपने शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। तो माय लविंग चिल्ड्रन, इस तरह से आपने देखा कि हम क्रॉनिक डिजीज क्या है उनका मैंने एग्जांपल दिया, और उनसे अपने को बचना है तो वी आर यूज्ड टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, एंड इन दोस कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन टू वी हैव टेक टू द होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड। अपने पूरे जीवन काल तक हमको उस मेडिसिन को लेना है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करें हम कि हमारे बॉडी में क्रॉनिक डिजीज का कोई क्रॉनिक डिजीज हमारे बॉडी पर अटैक करे, इसके जो पैथोजेंस हमारे बॉडी पर अटैक करें, कैंसर के पैथोजेंस, HIV के पैथोजेंस, फाइलेरियोसिस, एलिफेंटियासिस के पैथोजेंस, ये हमारी बॉडी पर जो अटैक कर रहे हैं, इनको हम यदि अपने को फुल्ली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लें तो ऐसी डिजीजेस से हमारी बॉडी सेफ हो सकती है, हमारी बॉडी बच सकती है। इस तरह से ट्रीटमेंट, इसका रेगुलर ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इसका रेगुलर ट्रीटमेंट है। और रेगुलर ट्रीटमेंट के तहत मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि रेगुलर ट्रीटमेंट में आप हमेशा प्रिकॉशन रखें, कभी ओवरडोज ना होने पाए या कभी लोअर डोज ना होने पाए, कभी ऐसा डोज ना होने पाए जो मैक्सिमम अमाउंट में आप ले लें, क्योंकि बॉडी के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा, या ऐसा डोज ना होने पाए जो कभी लोअर हो, इतना लिमिट हो, इतना लोअर हो कि आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट ही ना पड़े। ऐसी कंडीशन में ये ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर के अकॉर्डिंग बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर के अनुसार हम इसकी मेडिसिन को रेगुलर यूज करते रहते हैं। और हम रेगुलर मेडिसिन को टाइमली ले रहे हैं तो निश्चित ही एक समय वो आएगा जब हम अपनी बॉडी को फुल्ली प्रोवाइड टू द प्रोटेक्शन, पूरी तरह से अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो माय लविंग चिल्ड्रन, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन I have already given to you homework to you, and we are checked to the next day. My little children, our next question, those who have given the very simple way, write the short note on chronic disease and poor health. Chronic disease and poor health, my little children. If the person are suffering from the chronic disease, their health are simply poor. अगर वो व्यक्ति क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है तो उसका हेल्थ क्या होगा? उसका हेल्थ पुअर होगा। अगर उसका हेल्थ पुअर है तो ऐसी कंडीशन में पुअर हेल्थ पर आप देख सकते हैं कि अगर उसका हेल्थ पुअर है तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति काफी समय तक जो है वो सफर कर रहा है, डिजीज से सफर कर रहा है। आपने कहा उसका हेल्थ पुअर है, कमजोर है, स्वास्थ्य उसका कमजोर है, तो वो किसके द्वारा कमजोर है? क्रॉनिक डिजीज के द्वारा, क्योंकि एक्यूट डिजीज दैट टेक टू वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। एक्यूट डिजीज, इन दोस टाइप्स ऑफ डिजीज द पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। ऐसा रोग जो कि व्यक्ति बहुत ही अल्प समय तक के लिए ग्रसित होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है, बहुत ही अल्प समय तक ग्रसित हो जाता है, फिर उसके लिए बाद ये ठीक हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये एक्यूट बोला गया, लेकिन क्रॉनिक A person are suffering from whole lifetime of period, व्यक्ति पूरे जीवन काल तक इससे सफर करता है और इसी को हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। यदि हमें जानकारी नहीं है तो हमको डॉक्टर की सलाह पर ही इसके पूरे कार्य को करना है। उसके द्वारा बताई गई मेडिसिन का सिलेक्शन करना, मेडिसिन को लेना है, टाइमली लेना है। ट्रीटमेंट का सबसे पहला वैल्यू होता है कि टाइमली टेकिंग मेडिसिन, low medicine, low quantity of medicine and minimum dose. Their potency are low and minimum dose. मात्रा कम हो जो है और उसकी शक्ति भी कम हो, ऐसी मेडिसिन से हम स्टार्ट करते हैं। बट इफ द डिजीज आर रिफर्ड टू द क्रॉनिक, डॉक्टर आर आल्सो गिवन टू द हार्ट मेडिसिन्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स आर सिंपली नो, उस डॉक्टर जान रहा है यदि उसको सिंपल कोई मेडिसिन दी जा रही है, देयर आर नो इफेक्ट ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है,
तो करता क्या है को हमें और आपको एक ऐसी मेडिसिन से स्टार्ट करता है जिसका इफेक्ट कुछ लंबे समय तक बना रहे और बॉडी जो है सुचारू रूप से संतुलित रूप से वो बनी रहे। इस तरह से आपने देखा कि क्रॉनिक डिजीज अगर हो जाती है तो सिंपली पुअर हेल्थ होना है, सिंपली पुअर हेल्थ हो जाएगा। तो क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ का प्रोसेस है ये क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ का प्रोसेस है। यदि क्रॉनिक डिजीज होती है तो पुअर हेल्थ होगा, अब क्रॉनिक डिजीज नहीं है तो पुअर हेल्थ नहीं होगा। इस तरह से आपने देखा एंड क्रॉनिक डिजीज पर मैंने डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करके आपको बता भी दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बी स्प्रेड डिजीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। हाउ कैन बी स्प्रेड माय लविंग चिल्ड्रन, हाउ कैन बी स्प्रेड, अरे भाई मैं कैसे रोगों को बांट रहा हूं, हाउ कैन बी स्प्रेड, कैसे रोगों को बांट सकता हूं मैं। भाई हमारी डिजीज सफर कर रही है एक्यूट डिजीज से, सपोज दैट मिजल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस तरह से हुपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंटिस, इस तरह की डिजीज से हमारी बॉडी सफर कर रही है। हम करते क्या है, हमने उसी ग्लास में वाटर को जो है पानी को लिया और पी लिया और उसी ग्लास को वैसे ही बिना वॉश किए रख दिया, तो अदर पर्सन आएगा अगर उसी ग्लास में वो भी पानी पी लेता है तो इस तरह से जॉइंटिस के जो पैथोजन है वो आसानी से दूसरे पर्सन में पहुंच जाएंगे। ऐसी डिजीज सपोज दैट रिंगवर्म हो गया, इस तरह से वर्मल डिजीज जो होती हैं, जो वर्म्स के थ्रू होती हैं, जैसे खुजली हो गई, खसरा हो गया, अभी अब तक रुबैला है, ऐसी डिजीज जो है अगर आदमी सेकिंग द हैंड्स करता, आदमी हाथ मिला लेता है दूसरे से, तो हाथ मिलाते समय भी ये डिजीज स्प्रेड कर जाएंगी। हाथ मिलाते समय भी इस प्रकार के रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का प्रिकॉशन पूरी तरह से ध्यान में रखना है। हमने पानी के थ्रू बता दिया, वाटर के थ्रू हमने बता दिया, हमने सेकिंग द हैंड्स, हाथ मिलाने के थ्रू हमने आपको बता दिया, किसिंग टू ईच अदर मैंने किस करने के थ्रू आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि इन द लव, वेरी इफेक्टिव लव ऑफ द एनिमल्स सच एज लाइक द डॉग्स, कुत्ते में ऐसे रोग ढेर सारे हैं जो कि हम उससे बहुत ही लव कर, बहुत ही प्यार करते हैं, उसको गोद में बिठाते हैं, खिलाते हैं, तो ऐसे उसके बॉडी के अंदर से भी डिजीज हमारी शरीर में आ सकती है या हमारी बॉडी से डिजीज उसके बॉडी में जा सकती है। तो इस तरह से जो एक साइंस के अकॉर्डिंग इनमें एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए। यदि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है तो हमारी बॉडी भी पूरी तरह से मेंटेन है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है तो हमारी बॉडी इस तरह से मेंटेन नहीं। तो आपने देखा किस तरह से क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ के विषय मैंने बता दिया कि क्रॉनिक डिजीज और पुअर हेल्थ क्या है और ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, इसका प्रोसेस मैंने दे दिया। अब आइए देखते हैं हाउ, अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड डिजीज फ्री पर्सन। डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड डिजीज, माय डियर एंड लवली चिल्ड्रन, हेल्दी पर्सन, इट मीन्स healthy person means a person those who are completely or fully fit from socially, mentally and physically. There are 3 points: mentally, physically, socially. A person are fully fitted. A person are fully fitted only in these 3 points: socially, mentally and physically. Those persons are simply called to the healthy person. स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसको हेल्दी पर्सन का नाम देते हैं। एंड पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज मीन्स देयर हेल्थ आर सिंपली बी डाउन, सोशल नेटवर्किंग आर गोइंग ऑन, आर प्रोलैप्स, आर डाउन। इफ द मेंटल आर डिफ्यूज्ड, व्हाट हैपेंस? यदि आदमी का दिमाग नहीं कार्य कर रहा है तो क्या होगा? अरे भाई उसे हम पागल की श्रेणी में घोषित करते हैं। पागल में और कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता। पागल को अगर आप देखें कहेंगे इसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है तो पागल है, ऐसा नहीं होता। उसका मेंटल बिहेवियर, मेंटल वर्किंग जो है उसकी वो वीक हो जाती है, मस्तिष्क की क्षमता, उससे कार्य करने की क्षमता वीक हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह से इससे हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। तो इस तरह से माय लवली चिल्ड्रन, जो भी क्वेश्चन मैंने दिया
आपको दिया था होमवर्क के लिए, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आपका वर्क है कि आपका काम है कि इन सारे YouTube वीडियोस को देखिए और इसके द्वारा मैंने आपको अपना टॉपिक भी बता दिया कि हर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं व्हाई डू वी फॉल इन नेचुरल रिसोर्सेस, इन दोनों लेसन्स को मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है अलीमुद्दीन शेख कादरी के नाम से। और हमारे इस YouTube चैनल से आप जो है इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उनसे देख करके और उनका आंसर आप लिख सकते हैं। इसको भी जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख कर हमको दिखा सकते हैं। ये आपका होमवर्क के रूप में मैंने दिया है। और ये क्लास 9th के टोटल बच्चों से, अब ये क्लास 11th के बच्चों पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्लास 12th के बच्चों पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। माय लविंग चिल्ड्रन, in a class 11th, I have already been told to you and discussed the major points. Or major point is the class 11th biology or topic structural organization in animals. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन संरचनात्मक संगठन इन एनिमल्स, जीवों का। जीवों में संरचनात्मक संगठन क्या है? जीवों में उनका संरचनात्मक संगठन क्या है? इनके क्वेश्चंस में, जैसे इसके पहले आपने देखा मैंने अपने YouTube चैनल पर कॉकरोच के विषय में सारे पॉइंट्स अपलोड कर रखे थे। आज मैं उसी प्रकार से अपने इस YouTube चैनल पर अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल पर मैं खुद अलीमुद्दीन शेख कादरी आज फ्रॉग के विषय में कुछ टॉपिक्स आपको बताना चाहूंगा। माय लवली चिल्ड्रन, फ्रॉग या कॉस्मोपॉलिटन है, विश्वव्यापी है। एंड देयर आर 3 or 4 कैटेगरीज ऑफ फ्रॉग्स आर सिंपली अकर इन आवर इंडिया। हाइला, ब्यूफो, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना जिसको सिंपल फ्रॉग के नाम से हम जानते हैं। और यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि राना टिग्रीना एक ऐसा फ्रॉग है, इसकी वैरायटी एक ऐसी है, आपको यह हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, ये बरसात के दिनों में मिलेगा। ये 8 मंथ के लिए जो है एस्टिवेशन में होता है, 4 मंथ के लिए हिबरनेशन में होता है। तो एस्टिवेशन में जब जाता है, एस्टिवेशन में सुप्तावस्था में चला जाता है, तो 8 मंथ। जब रेनी सीजन आती है तो आप देखते हैं कि कितना बढ़िया सा फ्रॉग जो है वो पूरी तरह से निकलते हैं पीले होकर के, एकदम पीले पीले जो है वो बाहर निकलते हैं बरसात के महीनों में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैंने बताया आपको। इसका रीजन यह होता है कि इनके बॉडी में जो है वो ज्यादा मात्रा में जो फैट इसने स्टोरेज कर रखा था, वसा पिंडक जो इसके बॉडी में स्टोर कर रखे थे, जो फूड मटेरियल को स्टोर कर रखा था, वो 8 मंथ में सिंपली धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो गया, कंफ्यूज हो गया और टोटल को एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लिया, जिससे इनके बॉडी के आरबीसी का अमाउंट बहुत लेस हो जाता है, कम हो जाता है और ये देखने में आपको हमें पीले दिखाई देते हैं। जब बरसात के दिनों में ये बाहर आते हैं, इनमें भी रिस्पायरेशन आपने देखा कि नेजल रिस्पायरेशन होता है, जो है लिंगुअल रिस्पायरेशन होता है। लिंगुअल रिस्पायरेशन मींस लंग्स से भी रिस्पायरेशन होता है एंड स्किन रिस्पायरेशन भी होता है। There are 3 types of respiration. इस एम्फीबिया में, क्योंकि ये फ्रॉग एम्फीबियंस है, they have simply belong or live in a aquatic as well as terrestrial medium. ये स्थलाकृतिक भी है और जलीय भी है। स्थल में भी पाया जा रहा है तथा जल में भी पाया जा रहा है। तो जल में पाया जा रहा है तो एक्वाटिक मीडिया हो गया। और यही फ्रॉग आप देखते हैं कि इसके अपने स्किन कलर को भी चेंज कर लेता है। जब ये बाहर आता है बरसात के दिनों से कलर येलो होता है और ये 4 मंथ के बाद आप देखेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है? इसका कलर जो है वो हरे कलर में आ जाता है। ये आसानी से अपने को ग्रास में या हरे कलर के पत्तों में आसानी से अपने को, अपने बॉडी को छिपा लेता है। इसका ये नेचर, इसका ये बिहेवियर, इसका बिहेवियर इसके शत्रु से इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके दुश्मनों से इसकी रक्षा करता है। हम उसे देख नहीं पाते कहां एक छुपा हुआ है, क्योंकि वह उसी कलर में अपने बॉडी को चेंज कर लिया और जाकर उसी में शिफ्ट हो गया।
आसानी से ये जाकर के शिफ्ट होता है। और मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया, बता दिया है इसमें बॉडी ऑर्गन में एक्सक्रीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोएका होता है। और क्लोएका मीन्स ए इंडिविजुअल ऑर्गन those are secreted to the liquid as well as solid materials. It exert is excrete to a liquid as well as a solid materials. क्लोएका एक ऐसा होल है, इसका पोर होता है जिसके थ्रू ये सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन इन द केस ऑफ अदर डेवलपिंग एनिमल्स आप देखेंगे तो एक्सक्रीटिंग ऑर्गन अलग हैं और जो है सॉलिड वेस्ट जो है एक्सक्रीट करने के ऑर्गन्स अलग हैं। तो इसकी बॉडी में ऐसा नहीं होता, इसकी बॉडी में सिंपल होल होता है जिसको हमने क्लोएका का नाम दिया। और मॉर्फोलॉजिकल वे में अगर हम डिस्कस करते हैं इसके, क्या कभी आपने फ्रॉग को टच किया है? यदि आपने फ्रॉग को टच किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है और विस्कस होती है, नरम होती है और मुलायम होती है। यह राना टिग्रिना की मैं बात कर रहा हूं, ब्यूफो की बात नहीं कर रहा, टोड की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि टोड की बॉडी जो होती है वो रफ होती है, खुरदरी होती है, लेकिन राना टिग्रिना की बॉडी सॉफ्ट होती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ म्यूसिलेज। किसके द्वारा? म्यूसिलेज के द्वारा इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अब म्यूसिलेज के द्वारा इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अब ये आसानी से अगर इनको किसी सर्प ने कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो अपने बॉडी से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और बॉडी को आसानी से पिचका लेते हैं और धीरे धीरे बॉडी को सेल करते जाते हैं। इससे सर्प अपने जो है ओरल कैविटी को, अपने मुख को फैलाता चला जाता है और अपने बॉडी को सेल करते चले जाते हैं। ऑल ऑफ सडन अपने एयर को एग्जॉस्ट करके उसके बॉडी से, उसके मुंह से ये बाहर निकल करके भाग जाते हैं। अगर भागने में सफल हो गए तो अपनी लाइफ को बचा ले गए, नहीं सफल हो पाए तो फिर सर्प इनको दोबारा पकड़ने पर वो खा ले जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है सर्प के प्रिय आहार होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रॉग को कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनमें इनके हाइंड लिम्स, फोर लिम्स और इनके कुछ पार्ट्स हैं जिनको लोग खाने के रूप में यूज करते हैं, मीट के रूप में यूज करते हैं, मांस के रूप में यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इनके जो पिछले पैर होते हैं, हाइंड लिम्स जो होते हैं, उनमें एक नेट बना होता है, एक जाल बना होता है जिसके थ्रू ये आसानी से तैरने का काम करते हैं। लेकिन फोर लिम्ब में ऐसा नहीं होता। हाइंड लिम्ब में 5 फिंगर्स होती हैं और हर फिंगर के बीच बीच में यहां पर देखेंगे जाल बना हुआ होगा। अगर हर फिंगर के बीच में जाल बना हुआ है तो जाल बनने का रीजन ये हो गया कि वाटर को आसानी से प्रेस करेंगे पीछे की साइड में और बॉडी इनकी तिकोनी होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड होती है और आसानी से अपनी बॉडी को आगे लेकर के चले जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि बॉडी को तेजी के साथ आगे लेकर के जाना और यह उसके लिए हेल्पफुल होता है, फ्रॉग के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे नेचर हैं जो उसके एडाप्टिव नेचर हैं, ऐसे नेचर हैं जो उसके ये शो कर देते हैं कि एम्फीबियन नेचर है। जमीन पर आ गया तो ये आसानी से सिंपल मूवमेंट भी करेगा, आसानी से चल भी लेगा। और जमीन से बाहर चला गया, पानी में चला गया, जल में पर चला गया है, पोन्स, पूल्स, ड्रीम्स, स्लो फ्लो रनिंग वाटर, ऐसी कंडीशन में चला गया तो वहां पर सिंपली फ्लोट भी कर लेगा, तैर भी लेगा। उसका रीजन है कि इनके पिछले पैरों में मैंने बताया कि जाल बनी होती है जो पानी को आसानी से पीछे धकेलने में सहायक होती है, पुश करने में सहायक होती है। इनकी बॉडी ट्रायंगुलर शेप्ड है इसलिए पानी को फाड़ करके आगे बढ़ने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। ये इनके बॉडी का एडाप्टिव नेचर है, अनुकूलित प्रकृति है इनके बॉडी की जो वातावरण को अनुकूलित कर ले जा रही है। आपने देखा और ये जब हिबरनेशन में होते हैं, 4 मंथ के लिए आते हैं, बाहर आते हैं, तो उस समय जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, पकड़ कर खाते हैं। इनकी जो टंग्स होती है, इनके टंग्स की विशेषता होती है, इनकी टंग्स बाइलोब्ड होती है, द्विपत्ती होती है, द्विपत्तों में होती है, लेकिन आगे से बंद होती है और पीछे खुली होती है। इसीलिए किसी जीव को पकड़ते समय आसानी से अपनी टंग्स को बाहर फेंकते हैं, उस जीव को इस तरह से कैच कर लेते हैं और कैच कर लेने के बाद सीधे अपने मुख के अंदर डाल करके निकल ले जाते हैं, उस फेकस में डाल देते हैं। इनका कैचिंग पावर होता है, बहुत ही स्मार्ट कैचिंग पावर होता है कि झटके के साथ उस जीव के पास पहुंचना, इंसेक्ट के पास पहुंचना और इंसेक्ट को कैच करना और कैच करने के साथ साथ उसको तुरंत जो है अपने ओरल कैविटी में ले लेना, मुख में ले लेना। इस तरह से आपने देखा फ्रॉग
अपने कलर को चेंज करते हुए फ्रॉग जो है आसानी से सरवाइव कर ले जा रहा है। बचने के लिए मैंने बताया कि इनके बॉडी पर म्यूसिलेज है, आप पकड़ेंगे स्लिप करके आगे भाग जाएगा। इनके बचने का कलर को चेंज करके अपने को झाड़ियों में छुपा लेते हैं, ये बचने का इनका प्रोसीजर होता है। अगला प्रोसीजर ये होता है कि यूरिन को स्किड करते हुए भागते हैं। अगर आपने इसको टच करने का प्रयास किया तो बहुत तेजी के साथ यूरिन को स्किड करेंगे, आपके अंदर एक घृणा का भाव उत्पन्न होगा और आप पीछे हट जाएंगे। जैसे आप पीछे हट जाते हैं वैसे आगे भाग जाता है। इस तरह का नेचर, इस तरह का बिहेवियर अगर देखा गया तो फ्रॉग में है। इस कैटेगरी के अंडर एनिमल्स भी हैं, सैलमेंडर है, लेकिन उनमें यूरिन स्किड करने की पावर नहीं है। माय लविंग चिल्ड्रन, इस बात का ध्यान रखिएगा, मेढक पानी का जीव है लेकिन होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड कभी पानी पीता नहीं है। मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादी के माध्यम से बता रहा हूं कि मेढक जल का ही प्राणी है लेकिन कभी अपने पूरे जीवन काल में पानी ग्रहण नहीं करता, जल नहीं पीता है। रीजन क्या है? अरे भाई वाटर बैलेंस करना है इसको, तो क्या करेगा? ये आसानी से वाटर में जो है इसकी स्किन आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जितना वाटर इसके बॉडी में चाहिए उतना वाटर को ये मेंटेन रखता है। अपने बॉडी में वाटर की विस्कोसिटी को, वाटर की कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। उस कैपेसिटी को मेंटेन रखता है जिसके थ्रू ये अपने बॉडी के कलर को भी चेंज कर सके, बॉडी को विस्कस भी बना सके। ऐसी कंडीशन में अपने बॉडी के कलर को जो है और बॉडी के विस्कोसिटी को प्रोवाइड करता रहता है। लेकिन वाटर को अगर सिंपली जैसे हम लोग पानी को पीते हैं, इस कंडीशन में ये पानी को कभी नहीं पीता है। यह इसका नेचर, इसका बिहेवियर, इसका फिगर भी मैं अपलोड कर दे रहा हूं और साथ ही साथ इसके कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में आपको बता दे चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसका हार्ट जो होता है वो ट्राइलोब्ड होता है। ट्राइलोब्ड, मैंने कहा ट्राइलोब्ड, ट्राई चैम्बर्ड, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। हृदय इसका त्रिकपाटीय होता है, 3 भागों में बना होता है। 2 त्रिकोष्ठकीय कहा जाए, इनके हृदय को त्रिकोष्ठकीय कहा जाए। त्रिकोष्ठकीय 3 कोष्ठक होते हैं। 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल जहां पर मिलते हैं वहां पर इनमें वाल्व पाया जाता है। इसी वाल्व के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। इसी वाल्व के थ्रू इनके ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को देख रहे हैं, मेंटेन रखने के लिए, क्लाइमेट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो समर सीजन में हमारे क्लॉथ्स कम हो जाते हैं, स्वेटर वगैरह हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। विंटर सीजन में कोट, जैकेट इस तरह से पहन लेते हैं। ये अपने को, इनकी बॉडी को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हुआ, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये जमीन में नीचे चले जाते हैं और जमीन में नीचे चले जाएंगे तो ये जब रेनी सीजन आएगा उस सीजन में बाहर आएंगे। गर्मी और जाड़े के महीनों में आसानी से जमीन के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ले रहे हैं। इनके बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हार्ट का। हार्ट को देखा जाए, हार्ट के साथ साथ ही इनके बॉडी में जो लीवर है, साइड से लीवर है, गॉल ब्लैडर बोला गया उसको। इसका फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं, गॉल ब्लैडर बोला गया उसको। मैंने बताया इनमें लंग्स की कैपेसिटी सबसे ज्यादा बोथ साइड्स में लंग्स हैं, मींस ए पेयर ऑफ लंग्स मैं बोल रहा हूं। बॉडी के वे ऑर्गन जो डबल होते हैं उनको प्लूरल वे में बोला जाता है, लंग्स। इनको लंग्स कहा जाएगा। आईज, ये अकेले जो है सिंगल आई नहीं, पेयर में है, आईज, लंग्स, इस तरह से देख रहे हैं। और इनमें आप देख रहे हैं कि इनमें एक यूरेटर जो है, इसमें जो है लंग्स को देखा। लंग्स के नीचे आप आते हैं, यहां पर आप किडनी देखते हैं। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वहां पर उसको जो होता है फैट बॉडी उसके ऊपर पूरी तरह से कवर्डेड होती है। क्या होती है? फैट बॉडी, येलो कलर की फैट बॉडी। जब ये आप डिसेक्ट करेंगे इसको जो है डिसेक्ट, क्योंकि ये वर्टिब्रेट है इसलिए इसको वेंट्रल साइड से डिसेक्ट किया जाएगा। जब ये आप इसे डिसेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो देखने पर आप देखते हैं कि इसमें ढेर सारे येलो कलर के आपको वसा पिंडक दिखाई देते हैं। फैटी बॉडीज दिखाई देती है, फैट बॉडीज दिखाई देती हैं। ये फैट बॉडी जितना ज्यादा से ज्यादा ये फ्रॉग अपने बॉडी में फैट को स्टोर करता है, अपने बॉडी में जितना ज्यादा से ज्यादा फैट को स्टोर करेगा उतने ही लंबे समय तक अपने लाइफ को सर्वाइव करेगा। ये इनका कैरेक्टर होता है, इनका पोजीशन होता है कि ज्यादा मात्रा में इंसेक्ट को लेते हैं और इंसेक्ट को लेने के साथ ही साथ उसी मात्रा में अपने बॉडी को जो है सर्वाइव कर ले जाते हैं।
और जब इनमें जो फैट का अमाउंट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि फैट का ही कंबस्शन होता है जो लगा रेगुलर इनमें एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है और अपनी बॉडी को सर्वाइव करते रहते हैं। ये इफेक्ट ऑफ फैट है, फैट का ही रीजन है। इसके बाद आप देखते हैं किडनी, मैंने बता दिया पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड में किडनीज होती हैं। इन दोनों किडनीज से एक यूरेटर निकलता है, एक नलिका आती है, इसको यूरेटर बोला जाता है। चूंकि जो किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन करेगी उससे जो टॉक्सिक मटेरियल बनेगा वो टॉक्सिक मटेरियल जो है यूरेटर के थ्रू आ जाता है, जो है यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है तो आता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो आकर के रुक जाता है, स्टोर होता है, और उसी यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्टली अटैच होती है जो है रेक्टम से। वही यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्टली अटैच होती है रेक्टम से। उसी रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर दोनों एक ही पॉइंट से ओपन होते हैं, जिसका नाम है क्लोएकल अपर्चर। क्या नाम है उसका? क्लोएकल अपर्चर। इसका फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं, क्लोएकल अपर्चर। उसको क्लोएकल अपर्चर कहा जाता है। क्लोएकल अपर्चर का मतलब हो गया क्लोएका का भाग है ये, जिसके द्वारा ये शरीर में बने वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं। इस तरह से आप यहां पर एलिमेंट्री कैनाल को भी आप देख लीजिए आसानी से। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ओवरऑल पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पर बकल कैविटी से शुरू होता है और उसके बाद ओएसोफेगस आ जाता है इनमें। यह मैं बता रहा हूं राना टिग्रीना के विषय में, ध्यान दीजिएगा। एंडर फ्रॉग के विषय में मैं हाइला बिफो के विषय में डिस्कस कर रहा हूं, राना टिग्रीना के विषय में डिस्कस कर रहा हूं, एक सिंपल फ्रॉग के विषय, मेढक के विषय में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर हम देखा कि ओएसोफेगस आकर के धीरे से खुलता कहां पर? स्टमक में। स्टमक में आ जाता है। स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कार्निवोरस है। क्या है ये? कार्निवोरस है। और कार्निवोरस है तो माय लविंग चिल्ड्रन, माय लविंग फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं सबकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, छोटी होती है। इन द कंपेयर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, इन द कंपेयर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स की तुलना में कार्निवोरस एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है। इसीलिए हर्बीवोरस एनिमल्स में, जैसे आपने देख लिया, मैंने बताया कि आपने देखा कि रैबिट में आपने देखा कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे ज्यादा लंबी है। काऊ, गाय, और एलिमेंट्री कैनाल काफी ज्यादा लंबी है। रीजन है कि इसमें सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल का लंबा होना नितांत आवश्यक है। लेकिन यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि अगर ये एलिमेंट्री कैनाल इसमें शॉर्ट है और उसी शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल में अगर इनको, चूंकि इंसेक्टिवोरस हैं या फिर ऑम्निवोरस हैं, ऐसी कंडीशन में देखा कि अगर मांस का भक्षण कर रहे हैं, इंसेक्ट का भक्षण कर रहे हैं, उनका डाइजेशन करने के लिए इनको लॉन्ग टाइम टेकिंग होना चाहिए, लंबा समय अंतराल होता है। उतने लंबे समय अंतराल में ये अपने फूड मटेरियल को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लिया इन्होंने। अब ये पहुंच गए, इनके डाइजेस्टिव फूड मटेरियल आ गए कहां पर? रेक्टम में। जब ये पूरी तरह से डाइजेस्टेड हो गए, इन फूड मटेरियल से एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया गया। एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद अब कहां पर पहुंचाया जा रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद इनको पहुंचा दिया जा रहा है रेक्टम में। रेक्टम में आने के बाद क्या देखा जा रहा है कि रेक्टम में पहुंच करके ये समयानुसार शरीर से वर्ज्य पदार्थ के रूप में जो है मेढक इनको अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। वेस्ट मटेरियल के रूप में फ्रॉग इनको अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो माय लविंग चिल्ड्रन, इस तरह से आपने देखा कि ये इनका नेचर है, इनका बिहेवियर है, इनका जो है सिंपल सिम्टम है। कलर को चेंज कर लेना, बॉडी को विस्कस बनाए रखना, वाटर को जो है वाटर के थ्रू ये आसानी से सर्वाइव कर लेना, एम्फीबियन इन नेचर, और डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, और बॉडी का सिंपल ऑर्गन सिस्टम, सारे सिस्टम आपको इसमें देखने को फ्रॉग में मिलेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे, चूंकि रिप्रोडक्शन इसमें एक्सटर्नल होता है ना कि इंटरनल, एक्सटर्नल होता है, वाई निषेचन होता है। भले ही इनमें मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, बट इनमें जो स्पर्म और ओम का कॉम्बिनेशन होता है, जब फीमेल अपने बॉडी से ओम को लिबरेट करती है, एग्जिस्ट आउट करती है, उसी समय मेल अपने बॉडी से स्पर्म को भी एग्जिस्ट कर देता है, जिससे मेल और फीमेल एक म्यूचुअल फॉर्म करते हुए वाटर सरफेस पर आकर के कम्बिनाइज करते हैं और वहां से एक का फॉर्मेशन होता है। और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्स।
आर न्यू फ्रॉक्स। इस कंडीशन से आपने देखा कि फ्रॉग के केस में, मेढक के केस में जो भी टॉपिक्स रहे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं वो मैंने बताया। और फ्रॉग के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिको नहीं, यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से यूरियोटेलिक हो गया। अब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो माय लविंग चिल्ड्रन, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम ध्यान में रखें कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो मैं क्लास 11th के यह टॉपिक को जो है, इस जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अपलोड करेंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज क्लास 9th के द्वारा जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए और उसके आंसर जो मैंने बताए, और मैं एक बार फिर आप सभी से कहना चाहूंगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके लेकर के आना है। माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूरे क्लास 9th के ग्रुप में भेज दिया है, पूरे क्लास 11th के ग्रुप में भेज दिया है। इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया है यह सिर्फ क्लास टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, और आप क्लास टेस्ट के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर रखिए, क्योंकि एग्जाम आने से पहले तो टेस्ट आपका क्लियर कर लिया जाए कि आपके अंदर कितना जो है, किस पावर की कैपेसिटी है, कितना आपने लर्निंग किया है, किस तरह से आप याद किए हैं, और किस तरह से आप जो है लिख पाएंगे, राइट कर पाएंगे इसको। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आज के इसी टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। और एक बार फिर ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अदर पर्सन्स को भी जहां पर शेयर करेंगे उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चूंकि इसमें जितने वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूं, आप सारे वीडियोस को देखते जाइए। इस तरह से सारे वीडियोस को देखने पर आपके मन में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा है कि मैं एक्सप्रेशन में ही इसके सारे क्वेश्चंस को डालता चला जाऊंगा। अभी अब तक आपने देखा कि मैंने जो क्वेश्चन को अपलोड किया था वो टैगिंग में अपलोड किया था, तो यहाँ पर टैगिंग में अपलोड न करके अब मैं क्वेश्चन को जो है डायरेक्टली एक्सप्रेशन में अपलोड करता जा रहा, जहां पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्वेश्चन को अपलोड करता चला जाऊंगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर मैंने लेक्चर तो इतना बड़ा दे दिया, समझा दिया आपको, लेकिन एक पॉइंट हमसे मिस हुआ है, वो मैंने आपको आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना देना भूल गया। तो माय लविंग चिल्ड्रन, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन की तिथि, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना मैं आप सभी को देता हूँ कि आज का दिन जो है सरस्वती पूजन का दिन है, और इसीलिए मैंने कहा था आपसे, वो प्रॉमिस किया था कि मैं इस दिन एक अपना नया यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आज इस सरस्वती पूजन दिन, इस बसंत पंचमी के दिन मैं आज यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी, थैंक यू।